بھارتی پنجے میں لہو لہو کشمیر، مظالم کی دردناک تصویر، کیا اب بھی نہیں جاگے گا دنیا کا ضمیر؟ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی صفاقی نے دلوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ سوپور میں قابض فورسز نے معمر شہری کو کمسن نواسے کے سامنے شہید کر ڈالا۔ لاش کے ساتھ بیٹھے خوفزدہ بچے کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ بھارتی اہلکار شہید بشیر احمد کی جسد خاکی کی بے حرمتی بھی کرتے رہے۔ احتجاج کرنا پڑے گا اس وزیر اعظم کو، اس کٹپتلی کو وزیر اعظم ہاؤس سے کھینچ کے باہر پھینکنا پڑے گا۔ ہم NRO نہیں چاہتے، ہم چاہتے آپ ہمیں کنوکٹ کریں، نہیں کر سکتے ہو کیونکہ کیس نہیں ہے۔ یہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ PTI کی حکومت صدر زرداری کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ کٹھ پتلی کو وزیر اعظم ہاؤس سے کھینچ کر باہر نکالنا ہوگا۔ بلاول بھٹو کی للکار، بولے عمران خان اب خود -1 کی بات کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کتنی دیر وزیر اعظم رہتے ہیں، مزید رہے تو پاکستان کے لیے خطرہ ہوگا، امید ہے شہباز شریف APC کے لیے جلد رابطہ کریں گے۔ مزید بولے حکومت آصف علی زرداری کو قتل کرنا چاہتی ہے، PIA کی نچکاری کا بہانہ بنا رہی ہے، پاکستان کے پائلٹس بہترین ہیں۔ پوری طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن ہے، انہوں نے اٹیک کرنا ہے اور کرتے ہی وہ عمران خان کو اٹیک ہے، اس لیے کہ وہ یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ شخص اگر راستے سے ہٹ جائے تو ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ عمران خان کی آواز میں اتنی طاقت ہے اور اسی لیے تو وہ اتنا نہ ڈر ہے کہ اس کا تو ماضی اور اس کا جو حال ہے وہ تو بالکل صاف ہے۔ -1 اپوزیشن کے ذہنوں کی اختراع ہے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے پوری تحریک انصاف اور اتحادی وزیر اعظم کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اپوزیشن والے اپنے غلط کاموں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، عمران خان کو اس لیے ہدف بناتے ہیں کہ اگر یہ راستے سے ہٹ جائیں تو ان کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ عمران خان کا ماضی اور حال صاف ہے، اسی لیے وہ نڈر ہیں۔ اسکاٹ لینڈ حکومت نے لاک ڈاؤن کی پابندیاں مزید نرم کرنے کا اعلان کر دیا۔ حکومتی پروگرام کے تحت 15 جولائی تک صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ شاپنگ سٹورز کھلنے پر خریداروں کی لمبی قطاریں۔ اسکاٹش پارلیمنٹ میں نسل پرستی کے خلاف آواز گونج اٹھی۔ جسٹس سیکرٹری حمزہ یوسف نے نسل پرستی کے حوالے سے اپنی ہی حکومت پر تنقید کے نشتر چلا دیے۔ کہتے ہیں تمام بڑے عہدوں پر سفید فام افراد براجمان ہیں۔ برمنگھم میں کورونا کو شکست کا سامنا۔ گزشتہ 3 روز میں کسی بھی ہسپتال سے کورونا کے باعث ہلاکت کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ کورونا کے پھیلاؤ کو پاکستانیوں سے جوڑنے کی خبریں بھی جھوٹ نکلی، حقائق سامنے آ گئے۔ جرمن حکومت کا تاجروں اور عوام کے لیے بڑا ریلیف، روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی اشیاء پر ٹیکس میں کمی کا اعلان۔ تاجروں نے بھی حکومت کی پالیسی پر لبیک کہتے ہوئے اشیاء کی قیمتیں کم کر دیں۔ اوورسیز پاکستانی بلوچ یونٹی کے چیئرمین ڈاکٹر جمعہ خان مری کی ماسکو میں 92 نیوز سے گفتگو۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی سخت مذمت، کہا حملے میں بھارتی خفیہ ایجنسی راؤ ملوث ہے۔ چین سے منہ کی کھانے کے بعد بھارت پاکستان کے خلاف اوچھے ہتھ کنڈے پر اتر آیا۔ متحدہ عرب امارات نے دنیا بھر سے آنے والے شہریوں کے لیے 72 گھنٹے قبل کورونا ٹیسٹ کی شرط لازمی قرار دے دی۔ مسافروں کو 14 روزہ لازمی قرنطینہ سے بھی گزرنا پڑے گا۔ کروڑوں دلوں کی شہزادی ڈیانا اگر زندہ ہوتی تو آج 59ویں سالگرہ منا رہی ہوتی۔ سالگرہ پر دنیا بھر میں موجود مداحوں کا لیڈی ڈیانا کو محبت بھرا خراج عقیدت۔ بچوں کے ذہنوں پر برے اثرات ڈالنے والی آن لائن گیم PUBG عارضی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ۔ ترجمان PTI کے مطابق PUBG گیم کے متعلق مشاورت جاری ہے، مکمل پابندی نہیں لگا رہے، حتمی فیصلہ مشاورت سے ہوگا۔ PUBG گیم کی وجہ سے گزشتہ چند دنوں میں 3 نوجوان خودکشی کر چکے۔
मकबूजा कश्मीर में 3 साला बच्चे के सामने नाना के कत्ल पर पाकिस्तान में शदीद गम व गुस्से की लहर है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आज मकबूजा कश्मीर में जुल्म व बर्बरियत की इंतहा कर दी गई। 3 साला बच्चे के सामने नाना के कत्ल ने दिल दहला दिए। आज जो हुआ उससे बड़ी बर्बरियत का मुजाहिरा हो नहीं सकता। इंसानी हुकूक की तंजीमें आखिर कब तक खामोश रहेंगी? यूरोपीय यूनियन से मकबूजा कश्मीर पर तशवीश और गम गुस्से का इजहार किया है। भारत मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल कर रहा है। भारत कश्मीर में होने वाले मजालिम को छुपाने की कोशिश करता है। कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाना इंसानी तकाजा है। और जंग को खेल और खेल को जंग समझने वाला भारत खित्ते का अमन तबाह करने पे तुला है। भारतीय फोर्सेस की LOC पर फिर इश्तियाल अंगेजी देखी गई। लीपा सेक्टर में शहरी आबादी पर गोलाबारी, दिलवारी गांव का रिहायशी एक बच्चा शहीद हो गया। खित्ते के अमन का दुश्मन भारत अपनी हरकतों से बाज न आया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। ताज़ा तरीन इश्तियाल अंगेजी से तलवाड़ी गांव का एक बच्चा शहीद हो गया। DGI-SPR के मुताबिक भारतीय फौज ने लीपा सेक्टर पर शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया। आर्मट्री, मार्टर और भारी हथियार इस्तेमाल किए गए। पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया। रवा साल अब तक भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की 1546 बार खिलाफ वर्जियां की गई हैं, जबकि भारत की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाने से 14 अफराद शहीद और 144 जख्मी हो चुके हैं। सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर भारतीय नाजिमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज किया गया। वज़ारत खारजा के हुकाम ने एहतजाजी मुरासला भी हवाले कर दिया। बर्मिंघम से अच्छी खबर यह है कि वहाँ के अस्पतालों में गुज़श्ता 3 दिनों में कोई शख्स कोरोना से हलाक नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तानियों को कोरोना से जोड़ने के लिए सामने आने वाले इदादो शुमार भी गलत निकले हैं। इसी पर तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आबिद कासमी। आबिद कासमी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? ये बिल्कुल लास्ट 3 मंथ से हम तसलसल से कोरोना वायरस की अमवात की खबरें और बीमारी के फैलाव की खबरें देते आए हैं। तो आज ये खुशाइंद बात है कि गुज़श्ता 3 दिन से बर्मिंघम के हॉस्पिटल से किसी मौत की खबर नहीं आई कि वो कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है। 3 दिन से अमन है और नए केसेस भी बहुत कम रिकॉर्ड हो रहे हैं। और ये सारी चीज़ें देखकर एक अच्छी खबर है जो हमने महसूस किया कि तमाम देखने सुनने वालों को शेयर की जाए। लेकिन साथ ही नवाई इलाका है बर्मिंघम का, लेस्टर, वहाँ लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है क्योंकि वहाँ की नए केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से उस एरिया को लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। लेकिन बर्मिंघम इस वक्त उस जोन में नहीं आता। लेकिन अगर लोगों ने एहतियात ना की और इसी तरह गैदरिंग में जाते रहे, हिफाजती तदाबीर ना की, तो ये मसला उल्ट हो सकता है और यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन शायद बर्मिंघम में भी लगाना पड़े अगर इसमें एहतियाती तदाबीर लोगों ने इस्तेमाल न की। लेकिन फ़िलहाल यही है कि या बर्मिंघम के अस्पताल से जो खबर आई है वो ये है कि 3 दिन से कोई नई मौत नहीं हुई। एक और अच्छी खबर यह है कि यहाँ इंग्लिश मीडिया में ये न्यूज़ गर्दिश करती रही है 2-3 दिन से कि ब्रिटिश पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से वापस बरतानिया आए हैं तो उनकी वजह से बीमारी ज़्यादा फैली है बरतानिया में। लेकिन जब हमने तहकीकात की है तो उससे पता चला है कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये बीमारी पहले से पूरी दुनिया में फैली हुई है और इसकी वजह से पाकिस्तानियों की वजह से या पाकिस्तानियों के आने की वजह से कोई बीमारी यहाँ फैली नहीं है। और ये इंग्लिश मीडिया में इस किस्म की रिपोर्ट्स जो आई हैं उससे 1.6 मिलियन जो पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं उनकी दिलजारी हुई है और लोगों ने इस पर अफसोस का इजहार किया है। बुलेटिन में यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। स्कॉटलैंड हुकूमत ने भी लॉकडाउन की पाबंदियां नरम करने का ऐलान कर दिया है। हुकूमती प्रोग्राम के तहत 15 जुलाई तक सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। तफसीलात डंडी से हमारे नुमाइंदे कैसर हबीब की इस रिपोर्ट में।
स्कॉटिश हुकूमत दूसरे फेज के तहत ज़्यादातर दुकानें खोलने के प्रोग्राम का पहले ही ऐलान कर चुकी है, जिसके तहत शॉपिंग सेंटर्स या ऐसी दुकानें जिनके दरवाजे सड़क से मुंसलिक हैं उन्हें खोलने की इजाज़त है। हुकूमती ऐलान के बाद मशहूर मकामी स्टोर्स खुल गए हैं जहां लोगों की तवील कतारें देखने को मिली। हुकूमती प्रोग्राम के तहत 3 जुलाई से सफ़र के लिए 5 मील की हद ख़त्म की जा रही है, जबकि 6 जुलाई से रेस्टोरेंट्स और पब अपनी आउटडोर या गार्डन सर्विस का आगाज़ कर सकेंगे। 10 जुलाई के बाद लोग घरों में दीगर खानदानों के साथ भी मुलाकातें कर सकेंगे। लॉकडाउन में नरमी के हवाले से शहरियों ने खुशी का इजहार किया है, जबकि टैक्सी ड्राइवर्स ने भी सुख का सांस लिया है। Still, people not adhering to social distancing. Really, it's not great, but you know, Scotland's safer than most places, so I'm quite happy with the way everything's gone. Really, because of it. Shopping wise, it's mad that people are queuing for Primark and things, but other than that, it's all right. Really, it's good to see things open again. जैसे कि आप लोग देख रहे हो इधर ये सिटी सेंटर अभी थोड़ा सा रश लग गया है, तो ये लॉकडाउन खुल गया है थोड़ा सा। अभी हमारा जो टैक्सी है वो भी माशाल्लाह बिजी हो गया है। When I'm out and about, whether it be in a taxi or in a shop, that I wear my mask like I'm doing today, and also I'm very, very careful that I respect the other people around me, because the mask is protecting them and hopefully they'll do the same and they'll protect me. 15 जुलाई तक लाइब्रेरीज, म्यूजियम और हेयर ड्रेसर भी काम शुरू कर देंगे, लेकिन मुहैया करदा इन तमाम सहूलतों के साथ अभी सेहत और सफाई, हाथों को बार बार धोना और 2 मीटर के समाजी फासले को बरकरार रखने की पाबंदियां बरकरार रहेंगी। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड। स्कॉटिश पार्लियामेंट एडनबरा में जस्टिस सेक्रेटरी हमजा यूसुफ ने नस्ल परस्ती पर तकरीर की, जिसमें उन्होंने अपनी ही हुकूमत पर खुलकर तनकीद की। इस पर देखते हैं चौधरी खालिद परवेज की रिपोर्ट। दुनिया भर में बढ़ती हुई नस्ल परस्ती ने दुनिया की बड़ी ताकतों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडनबरा में स्कॉटिश पार्लियामेंट नौजवान मेंबर और जस्टिस सेक्रेटरी स्कॉट हमजा यूसुफ ने नस्ल परस्ती के हवाले से खुलकर तकरीर की। इनका कहना था कि अपोजिशन और हुकूमत का एक दूसरे पर तनकीद करना बहुत आसान है। नस्ल परस्ती के हवाले से सबको मिलकर सोचना चाहिए। We need from you is action and for you to be anti-racist by your deeds. Don't just tell us how you are not a racist. I take that as a bare minimum. You must be anti-racist. हमजा यूसुफ ने अपने साथी अरकान की तवज्जो दिलाई कि हाई कोर्ट के तमाम सरकारी इदारों के डायरेक्टर जनरल सब सफेद फाम हैं। Why are we so surprised when the most senior positions in Scotland are filled almost exclusively by those who are white? Take my portfolio alone. The Lord President, white. The Lord Justice Clerk, white. Every High Court judge, white. The Lord Advocate, white. The Solicitor General, white. The Chief Constable, white. Every Deputy Chief Constable, white. Every Assistant Chief Constable, white. The Head of the Law Society, white. The Head of the Faculty of Advocates, white. Every Prison Governor, white. हमजा यूसुफ पहले हेल्थ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। वो जारहाना अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश करने के हवाले से जाने जाते हैं। स्कॉटिश पार्लियामेंट में जस्टिस सेक्रेटरी हमजा यूसुफ ने एंटी रेसिज्म के हवाले से तकरीर करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के जज वाइट, पुलिस चीफ वाइट, हेल्थ मिनिस्टर वाइट, गर्ज के तमाम इदारों के जो हेड्स हैं वो वाइट हैं। इस हवाले से एथनिक मिनॉरिटी को वो प्रेफरेंस नहीं दी जाती। उनका कहना था कि एथनिक मिनॉरिटी के हवाले से मैं अपने कलीग्स की तवज्जो दिलाऊंगा, इस हवाले से भी हमें कुछ करना होगा। खालिद परवेज, 92 न्यूज़, एडनबरा, स्कॉटलैंड। बुलेटिन में यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। जर्मन हुकूमत का ताजिरों और अवाम के लिए बड़ा रिलीफ, रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया पर टैक्स कम कर दिया गया। ताजिरों ने भी हुकूमत की पॉलिसी पर लबैक कहते हुए कीमतों में कमी की। इसी पर आपको दिखाते हैं असगर मिर्जा की रिपोर्ट। जर्मन हुकूमत ने अवाम और ताजरों को कोरोना रिलीफ फ्राहम करने का फैसला किया है, जिसके तहत खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स 7% से कम करके 5% कर दिया है। दूसरी अशिया जिन पर 19% टैक्स था वो कम होकर 16% हो गया है।
حکومت کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، جبکہ دیکھا جائے تو اس میں دکانداروں اور حکومت کا بھی فائدہ ہے۔ تاجروں نے اس پالیسی پر منوعن لبیک کہتے ہوئے اگلے ہی روز عمل شروع کر دیا۔ شاپنگ سینٹر میں اشیاء خرد و نوش پر پرانی اور نئی قیمتیں چسپاں کر دی گئی ہیں تاکہ کسی قسم کا ابہام پیدا نہ ہو۔ اوورسیز پاکستانی بلوچ یونٹی کے چیئرمین ڈاکٹر جمعہ خان مری نے کراچی اسٹاک ایکسچینج حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ ماسکو میں 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس حملے میں بھارتی خفیہ ایجنسی را ملوث ہے۔ لداخ میں چین سے منہ کی کھانے کے بعد بھارت پاکستان کے خلاف اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے۔ نمائندہ 92 نیوز شاہد گھمن سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں۔ جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اوورسیز پاکستان بلوچ یونٹی کے چیئرمین ڈاکٹر جمعہ خان مری، اور کراچی اسٹاک ایکسچینج پر جو دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ڈاکٹر جمعہ خان مری اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، جو کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملہ ہوا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم بھائی صاحب، میں اس پر آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ بی ایل اے کا پہلا اٹیک نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے 2 اٹیک پہلے بھی کیے تھے اس طرح کے۔ یہ ایک دہشت گردی ہے جو ہمیشہ سے ان کا ایجنڈا ہے، لوگوں کو ڈرانا اور دہشت گردی کرنا۔ پہلے انہوں نے کراچی میں چائنیز کونسلر پر حملہ کیا جو کہ الحمدللہ ناکام رہا۔ پھر انہوں نے گوادر پر 5 اسٹار ہوٹل پر جہاں پر چائنیز انجینئر موجود تھے انہوں نے ادھر حملہ کیا، وہ بھی ناکام رہا۔ ابھی انہوں نے ادھر ایک انٹرنیشنل ہیڈ لائن بنانے کی کوشش کی کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کرنے کی، جو کہ الحمدللہ ناکام ہوا۔ اور اس طرح کے ایجنڈے، ان کے جو ایجنڈا ہے وہ ہے ٹیررزم، اور جس کو ہم ہر طرح سے، کوئی بھی بلوچ ہو، کوئی بھی انسان وہ اس طرح کی جو ہے نا حرکتوں کو برداشت نہیں کر سکتا، اور ہم بالکل پورے دل سے ان کو کنڈیم کرتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دہشت گرد حملے میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ہاتھ ہے اور بی ایل اے اس کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پچھلے 18 سال سے جو ہے نا ہندوستان بلوچستان کے اندر مداخلت کر رہا ہے۔ اس میں ایجنسیوں نے کئی بار رپورٹس دی ہیں، اور دنیا کے سارے اخباروں میں آپ پڑھیں گے تو ہندوستان کا راہ کا جو ہے نا وہ ہر جگہ پر ان کی جو ہے نا نقش قدم موجود ہے۔ وہ افغانستان میں بیٹھ کر لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، بلوچوں کو ورگلاتے ہیں پاکستان کے خلاف، اور بی ایل اے تو ان کا خاص مطلب ایجنٹ کہیں، ان کے وہ فٹ سولجر کہیں۔ را تو بی ایل اے کو اپنے بچہ سمجھتا ہے، اور بی ایل اے را کو جو اپنا باپ سمجھتا ہے، دونوں ان کے تعلقات ایسے ہی ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ را ان حملوں کے پیچھے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ کھلم کھلا کہتے ہیں ڈیلی اپنے ٹیلی ویژن چینلوں میں، ان کے جو ملٹری بندے ہیں، ان کو جو ایجنسی ہیں، وہ ڈیلی جو ہے دھمکی دیتے ہیں پاکستان کو، بلوچستان کے ذریعے سے، سندھ کے ذریعے سے۔ تو ہمیں ان چیزوں کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں آئندہ بھی ہوتے رہیں گے اور ابھی بھی ہوئے، لیکن ہمیں ہمیشہ ویجیلنٹ ہونا چاہیے اور ان چیزوں کا بر وقت مقابلہ کرنا چاہیے، جس طرح کے وہ کراچی پورٹ میں جو اسٹاک ایکسچینج میں جو محافظوں نے کیا، اس طرح ہمیں ویجیلنٹ ہونا چاہیے۔ اور ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے ملٹری اور اپنے جو ایجنسیوں نے، انہوں نے بر وقت کارروائی کر کے اس دہشت گردی کو ناکام بنایا۔ دہشت گردی کا راستہ چھوڑ کر امن اور پاکستانی قومی دھارے میں آنا چاہتا ہے تو بلوچ یونٹی کا پلیٹ فارم حاضر ہے ان کے لیے، تاکہ وہ اس کو استعمال کر کے اپنی نارمل زندگی شروع کریں۔ اور بلوچ یونٹی کا بیسک پرپس یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستانی دشمن ہیں، جس طرح بھارت ہے یا کوئی بھی اور ہے، ان کو ایکسپوز کرے اور بلوچوں کے سامنے دشمن کے جو ایجنڈے ہیں ان کو واضح کرے، تاکہ بلوچوں کو پتہ چلے کہ وہ کس طرح جو ہے ان کے نام پر لوگ پیسہ بار بنا رہے ہیں، اور بھارت کس طرح کشمیر کا مسئلہ بلوچستان کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم یہ چیزیں جو ہے نا بلوچوں کو اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان ایک پرامن ایریا ہے، پاکستان کا ایسا ہے۔ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ، یو این کے ذریعے سے ریکگنائزڈ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیرری ہے، جس کو ہندوستان کوشش کر کے بلوچستان کے ذریعے سے ڈائلیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کے اٹینشن کو بلوچستان کے ذریعے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہندوستان کی یہ جو ہے نا پلاٹ اور یہ جو پروگرام ہے یہ نہیں چلے گا۔ کشمیر انشاءاللہ آزاد ہو جائے گا، پاکستان کے ساتھ رہے گا۔ بلوچستان پہلے سے ہی پاکستان کے ساتھ ہے۔ تو میرے خیال میں ہندوستان ہر فرنٹ میں فیل ہو رہا ہے،
चाइना की तरफ से जब फेल हो जाता है तो पाकिस्तान को डांटता है, अभी उस तरफ नेपाल में उनको डंडे पड़ रहे हैं। तो मोदी सरकार जो है वो एक एक्सट्रीमिस्ट सरकार है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने दुनिया भर से आने वाले शहरियों के लिए 72 घंटे कबल टेस्ट की शर्त लाजमी करार दे दी। अमारात आने वाले मुसाफिरों को 14 रोज़ करंतना भी लाजमी तौर पर करना होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात हुकूमत की तरफ से आज नाफिज होने वाले क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक रिहायशी वीज़ा रखने वाले अफराद को मुल्क वापस आने से कम 72 घंटे कबल कोविड-19 का टेस्ट कराना होगा। सिर्फ उन्हें इसी सूरत में जहाज़ में सवार होने की इजाज़त दी जाएगी जब वो कोविड-19 से पाक होंगे। ये टेस्ट 17 ममालिक के 106 शहरों में वाक़ मंजूर शुदा लैब से कराए जा सकते हैं, जिसकी फहरिस्त अमारात के उस ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। वापस आने वालों को 14 दिन का करंतना लाजमी करना होगा। इमारात से मंजूर शुदा लैब की तादाद 150 तक बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है, जो दुनिया के 31 ममालिक में होंगी। PTI मुत्तहिदा अरब इमारात की मरकज़ी क़यादत ने बजट पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। इसे अवाम दोस्त करार देते हुए इमरान खान की क़यादत में मुल्क बहरान से निकालने का आज़म दोहराया है। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। इन मुश्किल हालात में टैक्स फ्री बजट देना वाकई इमरान खान की हुकूमत का मिसाली इकदाम है। इन ख्यालात का इजहार PTI UAE की मरकजी क़यादत ने एक इजलास में गुज़श्ता रोज़ किया। इजलास में UAE में फंसे पाकिस्तानियों की इमदाद के हवाले से लाहे अमल पर भी गौर किया गया। इस मौके पर तहरीक इंसाफ UAE के सदर ख्वाजा आसिफ करीम का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि PTI UAE में फंसे पाकिस्तानियों की भरपूर मदद कर रही है। टिकटों का बंदोबस्त किया जा रहा है। इस हवाले से वो दुबई कौंसलेट से मुकम्मल राब्ते में हैं। साथ ही उन्होंने बजट मंजूर होने पर PTI हुकूमत को मुबारकबाद भी पेश की। PTI UAE की मुनासबत से हम लोगों ने कोविड-19 जैसी मुश्किल सिचुएशन में जो हमने यहाँ फेस किया है, तमाम कारकुनों ने बहुत यकजहती और टीम वर्क के तहत काम करके तमाम पाकिस्तानियों को जो यहाँ मुश्किलात फेस कर रहे थे उनकी मदद की है। उनके लिए राशन, उनके लिए टिकट्स, उनके साथ कौंसलेट के साथ उनको कनेक्ट कराया है। हम खान साहब के साथ हमेशा से थे, हम हमेशा रहेंगे। हमें अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की मुश्किलात क्या हैं और हम ये समझते हैं कि जिस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं वो डायरेक्शन जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जा रही है। और उसका सबसे बड़ा जो हमें नज़र आ रहे हैं वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इस बजट के थ्रू अकोमोडेट किया गया है आवाम को और बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर लोगों की। PTI UAE के नायब सदर नवाज खान जदून का इस मौके पर कहना था कि अभी UAE में बहुत से पाकिस्तानी मुश्किलात का शिकार हैं। उनकी मदद के लिए PTI दिन रात काम कर रही है। हमारे PTI UAE है वो अभी भी हर किस्म की कोशिश कर रही है, हेल्प कर रही है। जितने भी हमारे इधर पाकिस्तानी भाई है, जितने लोग जिन प्रॉब्लम्स में है, अभी भी बहुत से लोग ऐसे ही जिनके जॉब्स नहीं, उनके लिए जॉब्स में हेल्प कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ कंपनियों से बात कर रहे हैं, इधर गवर्नमेंट लेवल पे बात कर रहे हैं कि उनके जॉब्स हो जाए। और जो वापस आना चाहते हैं उनके लिए बड़ी कोशिश हो रही है कि उनको किसी तरीके से वापस अपने जॉबों पे ले आए। तहरीक इंसाफ दुबई के सदर चौधरी जवेद इकबाल ने बजट पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अपोजिशन का काम शोर मचाना है। पहले से ज्यादा अक्सरियत के साथ बजट पास हो गया, वक्त लगेगा लेकिन इमरान खान मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करके रहेंगे। जो शोर शराबा अपोजिशन कर रही थी, क्या उन्होंने मैनेज इमरान खान कर लिया है? क्या वो जो कह रहे थे कि बजट पास नहीं होगा, क्या वो उसमें कामयाब हो गए हैं? देखें कितने वोटों से बजट जो है वो पास हुआ है। ये शोर शराबा इनका शुरू से है, रहेगा और ख़ान साहब पे हमें पूरा यकीन है। टाइम लगेगा, इंशाल्लाह सब चीज़ें स्टेट हो जाएंगी और इंशाल्लाह सब कुछ जो है ना बेहतर होगा। और आज भी ये साबित हो गया है बजट पेश करने के बाद और बजट अप्रूव होने के बाद कि जो हमारे फ़ैसले हैं पार्टी के, ख़ान साहब के, वो सबसे अजीम है और हर कोई उनको सपोर्ट कर रहा है। इजलास में शरीक PTI UAE की जनरल सेक्रेटरी सईदा सबीहा सैफ, जनरल सेक्रेटरी PTI दुबई सैयद कलीमुल्लाह शाह बुखारी, PTI UAE के रहनुमा इजाज खान, यास्मीन कमल, आदल मलिक और दीगर ने भी ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात के हल के लिए PTI मुत्तहिदा अरब अमारात की कोशिशों को सराहा और कौंसल खाना दुबई और पाकिस्तानी सफारत खाने के इक़दामात पर भी एतमाद का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। कैनेडियन डे को मनाने के लिए कनाडा के रिहायशियों ने मुनफरिद अंदाज अपनाया।
समाजी फासले के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए उस दिन को ऑनलाइन मनाया जा रहा है। कनाडा के शहर ओटावा में कौमी दिन को मनाने के हवाले से दोपहर और शाम के औकात में तकरीबात नशर की जाएंगी और उसके साथ आतिशबाजी को भी ऑनलाइन नशर किया जाएगा। सूबे की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिना हिंसक का कहना है कि मुल्क के बाकी हिस्सों में अवाम इकट्ठे होकर ये त्यौहार मनाने के साथ आतिशबाजी से भी लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी ट्वीट में कहा कि इस मौके पर तमाम लोग मास्क पहनें, हाथ धोएं और 2 मीटर का समाजी फासला इख्तियार करें। और इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।